प्रदीप जी। बिल्कुल सर। क्या बात है सर। प्रदीप जी, let's be very clear, irrespective of the way you cut it or whatever, but the fact remains that as far as the opposition is concerned, I don't think they have the strength right now. आज भी देख लीजिए आप, उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा मोर्चा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। अब न जाने कब करेंगे, मुझे मालूम नहीं। अब कल तो क्रिसमस है, 24 तारीख है, क्रिसमस ईव है, उसके बाद क्रिसमस सीजन आ जाएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। 28 तारीख को वन ऑफ इवेंट है प्रदीप जी, ऑफ द कांग्रेस फाउंडेशन डे। 28th of December 1885 was the day when the Congress was founded. So 138 साल हो जाएंगे, तब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 लाख लोग वहां पर आएंगे। But that's just a one-off event. मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर ये लोग, इन्होंने मतलब they don't have the strength, very frankly speaking, to have rallies. But they still have 20% of the vote share as per 2019 जो जनरल इलेक्शंस के स्टैटिस्टिक्स निकालोगे, 20% बहुत होते हैं। और पिछले 3 जो इलेक्शंस हुआ, 4 स्टेट 5 स्टेट का, in 4 states they had around 40% of the vote share. So below the Deccan they are very strong, they're absolutely strong. Now they have to pick up their resources above the Deccan and the western Maharashtra, yani the Hindi speaking belt and western India. That is where the focus of the Congress has to be, but the focus that they are doing right now is not enough. You need to put your resources out on the open, on the ground, 24/7 and put your best foot forward. And put your best foot forward. When are you going to do it? My point is, there are exactly elections के लिए there are about 4 or 5 months left. December is already over. April या मई में चुनाव होंगे, हो सकता है they might be after 15th of April या मई के फर्स्ट वीक में होंगे। मुझे ऐसा लगता है they'll probably be in April. मेरा ये कहना है कि आप कब अनाउंस करेंगे कि फला फला that so and so is leading us, so and so is doing this, and this is our alternative model. I don't know when they're going to do it. Forget about it. Sir, I'm not even concerned. Pradeep ji, I'm not even concerned about, Akhilesh Yadav said this or Nitish Kumar said this or somebody else said this. That doesn't make a difference. My point is, where is your alternative model? How are you going to combat Mr. Modi? And where is your organization? How do you expect the person who has been working, the boy who has been working, or the girl who has been working, or the man who has been working, or the woman who has been working for the Samajwadi Party all their life to work for the Congress in Uttar Pradesh? It's not going to happen unless and until you reach right down to the block level and tell them, hey, listen, this has to be done. नहीं तो हम सब लोग मर गए। सर कौन काम करेगा? आप खुद बीजेपी में रह चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना की जब युति होती थी, एंड दे हैव, बीजेपी और शिवसेना की युति सबसे पुरानी थी सर, अभी भी चल रही है वैसे। ऑफिशियल शिवसेना स्टिल विद द बीजेपी। शिवसेना के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने बाहर नहीं आते सर। प्रदीप जी। Exactly. Now if you see what the entire India Alliance का जो मीटिंग हुआ था सर, मीटिंग में ये तय किया था हम लोग 1-to-1 350 जगह पे हम लोग फाइट करेंगे, बट 1-to-1 as on today the Congress and the BJP are fighting in more than 250 states, 250 seats. 250 seats के ऊपर they are 1-to-1 already. Yes. And what has Congress done to increase their vote share? Because they are, I think their victory percentage among all these 250 seats is hardly 10% or 15%. That is what the political pundits say. They are not. तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? आप देखो मध्य प्रदेश में it is Congress versus the BJP, राजस्थान Congress with the BJP. जितने भी आप states देखो, it is always about the decade. It is already Congress versus the BJP. So Congress has to increase its share of victories. So which means they have to change their strategy. Let's ask Nasir Hussain साहब. Nasir Hussain साहब से हम पूछते हैं. Let's ask him. नासिर साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? नासिर साहब, तो 28 तारीख को जबरदस्त नागपुर में 10 लाख के करीब भीड़ एक्सपेक्टेड है, अपेक्षा है। बेशक, कल से मैं नागपुर में ही हूँ कंटिन्यू। तो इस वक्त आप नागपुर में हैं? वाह, लवली। आज मुंबई में हूँ, कल से मैं नागपुर। कल से? अच्छा, फ्रॉम टुमारो यू विल बी इन नागपुर। And again 28th of December it will be the 138th anniversary of the founding of the Congress way back in 1885, and absolutely wonderful, great organization. Nobody wants to see that organization fade away. Now अभी प्रदीप जी और मेरे बीच में जो बात हो रही थी सर, उसके बारे में आप बताएं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में आपकी वैसे भी 1-to-1 फाइट हुई ना बीजेपी के साथ, जहां पर 1% से या 2% से, या मध्य प्रदेश में 8% से, छत्तीसगढ़ में 4 या 5% से आप पीछे रह गए। तो आप वो
किस तरीके से जो परसेंटेज है 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? नासिर साहब, आप किस स्टेट के, आप इस 3 स्टेट की बात कर रहे हैं या किसी? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ओ सॉरी, आप देख लीजिए ना, राजस्थान में हमारा वोट शेयर तकरीबन 1% का है, और मध्य प्रदेश में भी हम 2% से पीछे, और राजस्थान एमपी में हम 4-5% से इनसे पीछे रह गए। उनकी 47, हमारे 43, लगभग 6% से हम पीछे रह गए। तो ऐसा नहीं, अलायंस, जब ये असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन टोटली डिफरेंट होता है, वो देश के नाम पे इलेक्शन होता है, एक राज्य के नाम पे होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जीतने का 2 रीजन मुझे जहां तक दिखता है मध्य प्रदेश में, वो डायरेक्ट बेनिफिट जो महिलाओं को मिला, जिस गरीबी में वो दलदल में दबी हुई है, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको अचानक उनके अकाउंट में 1500 रुपया अगर डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगे, तो उनकी जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंटरनेट ज्यादातर यूज महिलाएं नहीं करती है, ट्राइबल है, आदिवासी है, गरीब है, उनके पास नहीं है, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट पे अट्रैक्शन होके उनको वोट वो बदल गया। अदरवाइज हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कोई कमी नहीं था कि जो उनको ना मिल सके। बट क्या होता है कि आप मध्य प्रदेश में 450 का ऐलान करते हैं, यही सरकार महाराष्ट्र में है, वो 450 में आपको सिलेंडर देने का वादा नहीं करती। आज एमपी में खुद सेंट्रल सरकार राजस्थान को जवाब देती है कि हम 450 में ये सिलेंडर देने में फेलियर है, हम नहीं दे पाएंगे, ये जवाब आता है। तो ये दूसरे धर्मों में अभी देखिएगा कि ये जातियों धर्म में उलझा देंगे, इंडिया अलायंस के बात को इस तरह से निगेटिविटी में फैला देंगे जैसे ये अलायंस सही नहीं, अलायंस टूट चुका है, पूरी टारगेट अलायंस को तोड़ने की होगी। जब ये अलायंस एक साथ आता है तो हमारा वोट शेयर तकरीबन 53-52% से ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो बेशक ये हार जाएंगे, इनके पास उससे बचने का कोई रास्ता दिखता नहीं। आप हमारा वोट शेयर आप कहीं भी देख ले तो हमारा वोट शेयर बहुत बेहतर है। हम राजस्थान में 1-1 है, गुजरात में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है, हम एमपी में है, महाराष्ट्र में है, कांग्रेस यहाँ बहुत है। हम नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कमजोर है, बट नॉर्थ इंडिया में हमारे अलायंस पार्टनर हमसे बेहतर है, पर उनकी वोट शेयर हमारे वोट शेयर को मिला है तकरीबन, तो हम इनसे ज्यादा पहुंचते हैं। अभी ये मुकाबला बहुत कठिन है, मगर इनसे सवाल करना है, क्योंकि हम हारे हैं तो जनता हमसे पूछेगी कि ये अलायंस का कोई वजूद नहीं, पर ये अलायंस ही इनको हराएगी, ये इंडिया अलायंस ही इनके घर बैठाएगी, क्योंकि जवानों की हालात बद से बदतर है। कश्मीर में शहादत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी आप आतंकवादी हमले में हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। आज ये किसानों की बात करते हैं, राष्ट्रपति किसानों की जात खेल रहे। आपने शायद ही कभी इतिहास में सुना होगा कि एक राष्ट्रपति जो पद पे बैठा है वो अपने आप को जाट का नेता कहता हूं मैं। इससे बड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, जो अपने आप को राष्ट्रपति हैं, जो पूरे देश के हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो अपने आप को जाट का नेता कहते हो। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है इस देश के लिए? ऐसा हमने ना इतिहास में सुना है ना देखा है। अब ये एक नया ही इतिहास हम सबको देखने को मिल रहा है बजाज भाई जी। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आई एम लुकिंग एट द साइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 48.55% मिले हैं, 37 हमें नहीं, आपको 40.40 मिले, 40.40। आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, नॉट राजस्थान। 40.40%, तो फर्क है 8.15% का, 8% से ज्यादा का फर्क है मध्य प्रदेश में। राइट। अब वो कैसे हो गया? अब वो कैसे हो गया? अभी तक विशेषज्ञों को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ महिलाओं की वोट उनके तरफ ट्रांसफर हुआ है। मैं बार बार डायरेक्ट बेनिफिट जिनको मिला है, डायरेक्ट अकाउंट में जो पेमेंट ट्रांसफर हुआ वो वोट में तब्दील हुआ है, इसमें नो डाउट। फिर हमारे बागी उम्मीदवार भी थे, हमारे दूसरे उम्मीदवारों ने भी वोट काफी कर, तो ऐसा नहीं कि वोटों का एक अलग होता है, सेंट्रल इलेक्शन होगा, राज्य का इलेक्शन, उसमें तब्दीलियां आएगी। यही राज्य हम 2018 में भी जीते थे, पर लोकसभा के इलेक्शन में हम हार गए थे। तो ये पलट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आज ये वोट जो 2003 में हुआ था, इस बार आपके साथ 2023 में हुआ है, और 2004 में जो आपके साथ हुआ था वो शायद आपके साथ दोबारा हो जाए, हो सकता है, ऐसी बात नहीं। बेशक बिल्कुल हो सकता है, मगर आप समझिए, मैं बार बोल रहा हूं महिलाओं की, पर महिलाओं को वो समझाने में हम फेलियर रहे हैं। हम बोलते हम हारे हैं,
हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए, अपनी बात को रख नहीं पाए, पर हमने समझाने की बेहतर कोशिश की, उनको समझ, उनके रोजगार की बात की, उनकी कैसे मुस्तकबिल बने उस पर बात की, फिर भी हमारी बात जनता तक उस ढंग से नहीं पहुंची, क्योंकि डायरेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहां गरीबी बहुत है। इतनी गरीबी है कि अचानक अकाउंट में कोई 1500 रुपया अकाउंट में महिलाओं को आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाता है वो। क्योंकि हमारे वादों में था कि हम देंगे और ये दे रहे हैं, तो देंगे और देने में बहुत फर्क होता है। जो दे रहा होता है उस पर ज्यादा यकीन लोग जनता कर लेती है, और देंगे क्योंकि हम, तो इस वजह से हम उससे पीछे रह गए। अदरवाइज हमारे मैनिफेस्टो में कोई दोष नहीं था, हमारे वादों में कोई दोष नहीं था, हमने जो वादा किया था ओपीएस का, उसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी हम फेल हुए। इसको एक्सेप्ट करते, जनता की जो रजा है उसको हम मानना ही पड़ेगा, जो जनता की मर्जी है उसके खिलाफ हम कभी बोल नहीं सकते ना। नाज़िर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी का हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ जो वार्तालाप थे उसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि एक पॉलिटिशियन तब बढ़ता है जब वो डायलॉग और डिलीवरी में नहीं उलझते, वो कन्वर्सेशन में नहीं उलझते, टू एंड फ्रो। यानी आप कन्वर्सेशन में लोगों से बात भी करना पड़ेगा और उनसे सलाह भी लेना पड़ेगा, उनसे आपसे विचार विमर्श होना चाहिए। जो आज के तारीख में उन्होंने डायरेक्टली उनका जो टारगेट था नरेंद्र मोदी जी से हार्वर्ड कन्वर्सेशन में क्लियर कट मालूम पड़ा। वो बोल रहे कि जब तक हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे नहीं, हमको चैलेंज नहीं करेंगे, हमारे थॉट्स को चैलेंज नहीं करेंगे, लोगों से हम सुनेंगे नहीं, लोगों के बात नहीं सुनेंगे, तो अब तक आपके आलोचना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थे कि वन वे कम्युनिकेशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते नहीं है, और जो पार्लियामेंट में भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सब आलोचना था। तो हार्वर्ड में ये चीज जाके बोलना किधर तक सही है नाज़िर हुसैन साहब? इसमें गलत कहाँ है आप बताइए? इसमें सही है ना, जनता से कन्वर्सेशन होना चाहिए, जनता के बीच में जनता से बात होना चाहिए। ये सरकार किसके लिए? जनता के लिए है, आवाम के लिए। हम अगर आवाम की बात नहीं करें तो बात किसकी है? तो इनकी आप देखिए 2014 से टिल 2023 तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान ने कभी देखा है मोदी जी की? तो बता, उनकी स्क्रिप्ट लिखी होती है, कोई फिल्म एक्टर उनके इंटरव्यू ले रहा होता है, कोई लेखक के इंटरव्यू ले रहा होता है, कभी आपने किसी ऐसे पत्रकारों से खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमने नहीं देखा है, ना हमने सुना है कि इस तरह। क्या देश के प्रधानमंत्री को जनता से बात नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्टेज के ऊपर आके बोल के चला जाना चाहिए? वन वे ट्रैफिक में 2014 से देख रहा हूं, कभी प्रधानमंत्री जी आवाम के बीच में नहीं जाते। कभी उनकी एयरपोर्ट अगर आवाम के बीच से आती है तो सिर्फ बाहर के मुल्कों के एयरपोर्ट की फोटो आती है, वो हाथ हिलाते हुए चले जाते। कभी जनता के बीच में जाइए, जनता से बात करिए, लोगों के दुख को समझिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उसमें देखिए हर आवाम को टच किया, दलितों को भी टच किया, तो गरीबों को भी टच किया, आदिवासियों को भी किया, हर मजहब हर जातियों को मिलाया। आप देखिए कारपेंटर काम कर रहा है तो कारपेंटर से मिल रहे हैं, ड्राइवर काम चला रहे हैं तो ड्राइवर से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, तमाम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो मैकेनिक है, ऐसे हर उस नीचे लेवल तक वो जा रहे हैं जहां आवाम है। उस आवाम को टच करने, उनके मुसीबतों को समझने का काम कर रहे हैं। आप देखिए एक वेजिटेबल बेचने वाला आजान मंडी के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे होते हैं जन नेता जो जनता के बीच में जाए, जनता से पूछे ये सरकार किसके लिए? जनता के लिए, ना कि कॉर्पोरेट जगत के लिए। आपने अभी कुछ दिन पहले एक चैनल आपने ही शायद डिबेट रखा था, अभी अडानी की बात हुई थी, तो एक कॉर्पोरेट जगत के लिए काम कर रही, जो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, जो धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है, जो जनता से आवाम। तो यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बात रखी कि जनता के बीच ये नहीं जा। जीत जाना, बार बार बोलते हैं, जीत जाने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जीत गए आपको मुबारक, बट मुद्दे आज भी वो जिंदा है कि जनता के आवाम के मुद्दे कहां हैं? आप भी आज भी लोग परेशान, हालात हैं, परेशानियों में जूझ रहे हैं। मैं देखिए हमारा रिपोर्ट नहीं है, आईएम, ये रिपोर्ट आपने दैनिक भास्कर का पढ़ा ही होगा कि आईएम कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार को चिंता ही नहीं है कि कितना कर्ज इस देश पे हो चुका है। हर नागरिक कर्ज के दलदल में डूबा जा रहा है। देश पे कितना कर्ज है सरकार बताने को तैयार नहीं है। क्या ये रिपोर्ट जनता के बीच में आ रहा है? आप सोच के देखिए। तो यही होता है आवाम से बात करने। इस पे कभी नाज़िर साहब 1 मिनट, लेट मी क्लैरिफाई। जो रिपोर्ट अभी नाज़िर साहब दिखा रहे हैं वो आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ हैज सेंट अ वार्निंग लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग दैट आपका जो जीडीपी है उसके तकरीबन बराबर आपका कर्जा हो गया है, तो वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। तो जरा सचेत हो जाइए। एग्रीड, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ रही है, वी एग्री 6.8% पे बढ़ रही है, बट योर एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट
is going to surpass your GDP very shortly. And Fantastic. We are looking at disaster. चलिए बोलिए नासिर साहब प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसके ऊपर अगर हम बात रखते हैं तो कोई गलत नहीं है। आप हर बातों को मजहब और जातियों में बांट देते हैं, इन बेसिक मुद्दों को उठाना कोई गलत है क्या? आप बताइए, किसानों की आज ये बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं, यही हमारी बहनें जंतर मंतर पे बैठी रही, वो भी किसी मजहब की थी, वो भी किसी किसानों के थे। इससे पहले किसानों आंदोलन हो रहा था, सारी जाट किसानों, अरे सारी जो मेडल जीत के आई हैं वो सारी जाटनी। मैं बता रहा हूं, उससे पहले जो किसान यहाँ हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे थे, वो तमाम किसान थे। उन्हें कौन से रंग से रंगा गया? उन्हें टेररिस्ट कहा गया, उन्हें आतंकवादी से रूप दिया गया, उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा गया, ऐसे ऐसे तमाम लफ्जों से नवाजा गया। फिर मैं एक और सवाल उठाता हूं, 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सदन से बाहर हो जाते हैं, वो भी किसी ना किसी मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी ना किसी मजहब से आते हैं, तो क्या उस मजहब की इंसल्ट हो रही है? अगर हम बजाज भाई और प्रदीप भाई से कोई सवाल करते हैं, हम उनसे जवाब मांगते हैं, तो उनकी जात कहां से आ गई? उनकी बात 1 to 1 है, इंडिविजुअल, वो पूरे मजहब को। तो 146 एमपी को आज सवाल करना चाहिए, मेरे मैं इस जाति से इसलिए मुझे संसद से बाहर कर दिया गया, वो उस जाति से इसलिए संसद से बात कर दिया गया। आप इस तरह से तो ये फिर जातियों में बढ़ जाएगा, फिर हर कोई अपनी अपनी जाति पे तो फिर कोई किसी से सवाल करना ही बंद कर देगा। आप उन किसानों की, जो किसान सच में किसान थे, जो सड़कों पे, उनके सवाल को आपने कभी लिया नहीं, उन बहनों की सवाल को लिया नहीं। आप एक जाट की बात कर रहे हो, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति जैसे पद पे बैठ के इस तरह के अल्फाज निकालना मैंने इतिहास में नहीं देखा है। ये पहली बार एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, जो हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। 1900 हमारी चौधरी चरण सिंह से कई मनमुटाव था, कई तरह की हमारी चौधरी चरण सिंह ने, आपको याद होगा, बाबू जगजीवन राम को पीएम बनने से रोक दिया था। तो क्या आज पूरी दलित समाज कहेगी कि बाबू जगजीवन राम इसलिए नहीं बने कि वो दलित थे और ये किसान नेता थे, किसान नेता ने एक दलित को पीएम नहीं बनने दिया? ये कोई अल्फाज आएगी? कभी आपने सुना है? अब आपने शांति भूषण का किताब पढ़ा होगा, उसमें पूरा डिटेल है। मैं उस किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रही, मैंने एक बार, तो उस किताब में पूरा डिटेल है किस तरह से वो उनको नहीं बनने दिया गया पीएम, क्या हुआ, पूरा हिस्ट्री है। तो आप एक ऐसे तो फिर मैं इसका जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इसका बोलूं कि एक अगर मजहब के नाम पे अगर हम नासिर हुसैन साहब, अमित शाह जी का कहना है कि नॉट ओनली आपने जाट पुत्र, किसान पुत्र, ओबीसी पुत्र, उपराष्ट्रपति का अपमान किया, आपने चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान किया है, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी की। तो ये आपको किसान से कोई लेना देना नहीं, अमित शाह जी का कहना है। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में ही चलते हैं, चौधरी चरण सिंह की बात लाते। 1930 का लाहौर हमारा अधिवेशन था, उस अधिवेशन से वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपने गांव सांगली या कौन सा उनका एक विलेज था, वहां आके कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं, उस कांग्रेस कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, और उसी भट्टी में वो टेम्परेचर में तब के वो एक नायाब नगीना निकलते हैं, जो किसानों के सबसे बड़ा नेता बनते हैं। वो कांग्रेस के भट्टी में ही बनते हैं, कांग्रेस के ही पलों में बढ़ के बनते हैं, महात्मा गांधी के साथ। तो आप बताएं, मोरारजी देसाई के साथ उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया? वो प्रधानमंत्री आज उनके नाम के आगे पूर्व प्रधानमंत्री लगता है, तो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही उनको सपोर्ट किया था, समाजवादी ने किया, तब वो प्रधानमंत्री बने, इतने ऊंचे पद पे वो गए। भले इंदिरा गांधी जी ने उनसे किसी वजह से अपनी सपोर्ट विड्रॉल किया, क्योंकि वो एक कंडीशन के तरह उनको सपोर्ट किया गया, तो उस कंडीशन पे वो कायम नहीं रहे। ऐसे तो चौधरी चरण सिंह के भी सरकार गिराने में उनका हाथ आ जाता है, सॉरी मोरारजी देसाई की सरकार गिराने में उनका नाम आता है। तो ये एक अलग बात है। हम वो किसानों के बड़े नेता है, उनकी पूरी सादगी है, पूरी जिंदगी है, जो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस का इनके साथ। आप बताइए, हमने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी, आज एयरपोर्ट उनके नाम पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। उनके नाम पे अगर आप तमाम यूनिवर्सिटी देखिए उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो किसने दिया? कांग्रेस। तो हम कैसे अपमान करते हैं? आप साबित करिए हमने क्या अपमान उनका किया है। आपने किसानों का अपमान किया, वो साबित होता है। आज भी सांगली के अंदर गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा है जी। जो चौधरी चरण सिंह के इंप्रेशन है, जो उनको वो मानते हैं, उनके वारिसों में गिने जाते हैं। उनके बेटे अजीत सिंह के बच्चे को आपने किस तरह से मारा गया? आपने डंडों से पीट पीट के घायल किया था, तो तब आप चौधरी चरण सिंह के ख्याल नहीं आया। उन गन्ना पेमेंट किसानों का पेमेंट आपने नहीं किया, तमाम किसानों को आपने रोड पे छोड़ दिया, उनको एमएसपी नहीं दिया।
तब चौधरी चरण सिंह का अपमान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं बोलता हूं इनके पास कोई विरासत नहीं है, तो हर कहीं से विरासत उधार में लाने का काम कर रहे हैं। अगर आपके पास विरासत है तो आप अपने नेताओं के नाम पे वोट मांगिए। चौधरी चरण सिंह की पूरी जिंदगी देखिए तो एकदम इनके विरोध में रही है। ठीक है, कभी इनसे जनसंघ के साथ उनकी सपोर्ट रही होगी, मगर उनके कभी उनके आजू बाजू में भी वो नहीं जाते हैं। उनकी एक अलग ही जिंदगी, उनकी सादगी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। तो अब कैसे आप उनसे हमारे को अलग कर सकते हैं? बाय द वे नासिर साहब, जो आप गांव का नाम भूल रहे थे, गांव का नाम था नूरपुर। हाँ, आप 1930 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना उन्होंने की थी। गांव का नाम था नूरपुर, बागपत डिस्ट्रिक्ट में नूरपुर था। तो कांग्रेस कमेटी के उन्होंने स्थापना की, वो हमारे साथ रहे हैं, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो कैसे वो हम पे एलिगेशन, हम पे एलिगेशन है कि हमने उनका अपमान किया? अरे अपमान किया है तो आप लोगों ने किया है। आप लोगों की पूरी जिंदगी उनके अपमान में चली गई। जयंत चौधरी को मारने वाले आप लोग, उनको पीटने वाले आप लोग, आप हम पे इल्जाम लगाते हो। ये कैसी बात करते हो आप? लेकिन एक चीज तो है प्रदीप जी, एक सेकंड, एक चीज तो है, जैसे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने जब मोदी जी का नाम लिया, मोदी का नाम लिया, मोदी जात का नाम लिया, तो ये हो गया कि सारे ओबीसी का अपमान किया है आपने। अभी वो जो कल्याण बैनर्जी साहब हैं, उन्होंने कुछ नकल उतारी, स्टैंड अप कॉमेडी कुछ करी इनको लेकर के, जगदीप धनखड़ साहब को, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, और राहुल गांधी साहब वो दिख रहा था कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने पूरा जाट समुदाय को आपने जो है वो क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया। तो ये एक टेम्पलेट बन गया है, स्टैंडर्ड बन गया है। किसी के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे तो उनकी जो पूरी कम्युनिटी है उसको बीच में ले आएंगे और कहेंगे कि इनकी बेइज्जती करी आपने। नासिर साहब, वही कह रहा हूं, मजहब में कॉन्स्टिट्यूशन बार बार खुलता है, मजहब के नाम पे आप वोट मत मांगो, पर यह मजहब के नाम पे ही राजनीति पूरी टोटली हर कोई किसी न किसी मजहब से ही आता है, किसी न किसी जात से। आप फिर तो सवाल करना ही बंद हो जाएगा इस देश में, क्योंकि मैं सवाल करूंगा, बोलेगा आप मेरे जाति वालों से सवाल कर लो। So Pradeep ji, that means what Nasir Saab is saying is a big point. Just one second, Nasir Saab. एक मिनट, किसानों की बात, किसानों का इन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल माफ कर देंगे। क्या माफ किया सांगली में? आज तक उनका बिल माफ नहीं हुआ सर। आज तक किसान आज भी सांगली के अंदर, मैं बता रहा हूँ, आज का रिपोर्ट में लेके बता रहा हूँ, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे मिल के सामने बैठे, उनको गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। यही सरकार ने वादा किया था, मैं 14 डेज में पेमेंट कराऊंगा, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं मिलता है तो उसका ब्याज मिलेगा। क्या वो ब्याज मिला? ना क्या उनको मूल्य मिला? ना उनको गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना उनको ब्याज मिल रहा है, ना उनको बिजली माफ हो रहा है। हर जगह झूठ, किसानों के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं। वो तो नॉर्मल है सर, वो तो नॉर्मल है सर। वन सेकंड नासिर साहब, एक सेकंड, पूरा भी बेच दिया। नासिर साहब एक सेकंड, प्रदीप जी, what Nasir Saab has said is a very valid point, very important. There are 143 MPs who have been suspended for the entire winter session. जो उन्होंने कहा वो भी किसी धर्म से आते हैं, वो भी किसी जात के हैं, वो भी किसी समुदाय के हैं, और वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। एक एक क्षेत्र में 15-15 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो 15-20 लाख लोगों का ये अपमान नहीं है। प्रदीप जी, बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब ने और राहुल गांधी जी ने वही कहा, लोकतंत्र खतरे में है और डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। 145 जो 43-45 जो बोलते हैं एमपीस को सस्पेंड किया। व्हाट दे आस्क्ड, ऑपोजिशन का एक ही मांग था कि मोदी साहब जवाब दे पार्लियामेंट में। मोदी साहब आज भी कहीं जवाब नहीं देते। वही आज हार्वर्ड में राहुल गांधी जी जो भाषण किए उसी का एक रूपरेखा है कि आप पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और संवाद। और दूसरे जो उन्होंने कहा कि अमित शाह टू रिप्लाई, या तो इस्तीफा दे दे, रिप्लाई कर ले। और तीसरा डिमांड था कि नेशनल सिक्योरिटी और पार्लियामेंट सिक्योरिटी पे बहस हो पार्लियामेंट में, वो भी नहीं होगा। और पार्लियामेंट में एमपी बीजेपी एमपी जिसके पास इशू हो गया, उनको भी सस्पेंशन नहीं किया। तो ऑपोजिशन का कोई बात ना मानना, फिर डिस्कशन डिबेट नहीं होना और फिर बोलना कि हम डिस्कशन डिबेट और लोकतंत्र में मानना, तो ये इनका जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है कि डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट, इसे जबरदस्त तरीके से कोई पेश नहीं आ सकता था। दुबई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब साइड
हाउ डू यू से ये इस पे खरगे साहब, और दूसरा आज विवाद पैदा हो गया कि खरगे साहब इज नॉट एक्सेप्टेबल। जनता दल यूनाइटेड, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के बन सकते हैं, खरगे साहब इज नॉट कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वापस फूट हो गया इंडिया अलायंस में। नाजिर साहब, मैं पहले थोड़ा पार्लियामेंट पे आता हूं। प्रताप सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के लिए इनको किसका परमिशन चाहिए था? उन बच्चों पे तो आपने यूएपीए लगा दिया। मैं उसके जो उन्होंने हरकत की उसके कोई भी उसको सही नहीं कह सकता, मगर उनकी डिमांड जायज थी। वो डिमांड पे तो हम हमेशा समर्थन करते हैं और वही हमारे नारा भी है। क्या उन बच्चों ने यही नारा लगाया, जय भीम, भारत माता की जय, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ मिले? ये डिमांड कांग्रेस भी करती है, ये तमाम देश के लोग भी करते हैं। इससे तो साबित होता है वो आतंकवादी नहीं थे। हाँ, तरीका गलत था, अपनी मांग मांगने का तरीका गलत था, मगर बेरोजगारी तो था, अपने बेरोजगारी की आवाज तो उठा रहे। क्योंकि कोई भी डेटा अब तक नहीं मिलता है कि उनका बैकग्राउंड किसी ऐसे संस्था से मिली हो जो आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, ऐसा। बट अपनी बात को बुलंद करने का उन्होंने तरीका जो ढूंढा वो शायद भगत सिंह से ढूंढा, जो उन्होंने पर मैं कहता हूं कि वो तरीका आज भी गलत है, मगर उनकी डिमांड मैं आज भी कहता हूं वो सही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तमाम जाति के लोग बेरोजगार है, तमाम लोग एम्प्लॉयमेंट में को मांगने के लिए सड़कों पे है, पर उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। एक उसकी आवाज उठाई तो 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने बाहर कर दिया। सिर्फ सवाल क्या है कि आप आके यहाँ जवाब दो। पर जो पार्लियामेंट में जाना इतना इजी नहीं है, वो भी पब्लिक गैलरी तक पहुंच जाना उससे भी ज्यादा टफ है। आपको पास इतना इजीली उन्होंने दिया, पास देके बुलाया, कुछ ना कुछ तो आप जानते होंगे पहले से। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई कार्रवाई हुई, कोई सवाल हुआ, कोई जवाब हुआ, किसी को पता नहीं। पर जिसने सवाल उठाया ओपोजिशन, आपने पूरे बिना ओपोजिशन का ये लोकतंत्र चल रहा है, कभी हमने सोचा नहीं था। आप बताइए, कोई भी बिल पे डिस्कशन नहीं है, ओपोजिशन के लोग नहीं है, ये कैसा लोकतंत्र है? जब तक ओपोजिशन नहीं होगा लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर तो ये हिटलर शाही है, आप जो राज करेंगे वही सही, हम बात कहे तो वो गलत। ये कैसे है? मैं बार बार बोलता हूं, जब भी हो लोकतंत्र में आवाज उठाइए। आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, अपनी बात को रखना गलत नहीं है, सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार उससे भाग रही है और हम पे एलिगेशन लगा रही है। और जेडीयू के लोग कहते हैं खरगे जी प्रधान, हमने तो नहीं कहा कि खरगे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने, कांग्रेस ने कब कहा कि वो प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट है? हम इंडिया अलायंस के कई पार्टनर हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। अगर ममता जी ने, अरविंद जी ने अपनी बात रखी, एक उस मीटिंग में बात रखी, तो उस मीटिंग की बात वहीं खत्म हो सकती थी, पर उसे पब्लिक किया जा रहा है। मीटिंग में हर तरह अलग अलग बातें रहती है। कोई हम बात और विवाद इसी की बात है, वो हमसे जायज भी होंगे, कुछ बात नाजायज भी होंगे। उस मीटिंग को उसी पे सॉल्यूशन होता है। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि खरगे जी प्राइम मिनिस्टर, जबकि खरगे जी ने खुद कहा सबसे पहले हमें अपना नंबर बढ़ाना है। हम अपने नंबर जब तक हमारे दुरुस्त नहीं होंगे, हमारा डेटा हमारा सही नहीं होगा, हम पीएम का चुनाव नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपना नंबर बनाइए, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गए, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको चुनेंगे कौन प्रधानमंत्री। क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कोई अपना चेहरा दिया था? बिना चेहरे का चुनाव ले रहा था, कोई लीडर नहीं था। तो फिर आप हम पे क्यों सवाल उठाते हैं? कोई हमारे अलायंस में खतरा नहीं है। अलायंस में छोटी मनमुटाव होती रहेगी, इतनी सारी पार्टियां हैं, कोई कुछ कहे तो हर बात से पार्टी टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। सब एक साथ आ रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं। आज भी इंडिया अलायंस के कई कन्वर्सेशनों का आज भी मीटिंग हुआ है, तो अलायंस अटूट है, बिल्कुल कोई बिखराव नहीं है, हम एक साथ हैं। मगर जनता के मुद्दों पे जवाब दीजिए, उससे वो छूट जा रहे हैं। मैं बार बार बेसिक मुद्दों की बात करता हूँ, रोजगार पे बात करो, किसानों पे बात करो, महिलाओं पे बात करो, नौजवानों पे बात, उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो आज खाने पीने की चीज आसमान, महंगाई आसमान छू रही, उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो जाति पे बात करेंगे। That's exactly what Rahul Gandhi said. That's exactly what Rahul Gandhi ji said when the media asked him. You know, there were about 7 or 8 mics in front of him, and everybody was only concerned with the stand-up comedy, that is the mimicry, and Rahul Gandhi shooting that. वो वीडियोग्राफी करते हुए अपने कैमरे के ऊपर। तो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो जबरदस्त था, एक्चुअली स्पीकिंग। इफ यू लुक एट इट, आई डोंट नो वेदर वी हैव इट। व्हाट ही सेड वाज, यू आर मोर वरीड अबाउट a mimicry. You are not going to ask me about the basic questions confronting the country today.
आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, जो हिंसात्मक गतिविधि हर जगह पर हो रही है उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, किसानों के बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो नासिर साहब ये क्या हो रहा है? मीडिया की प्रायोरिटीज कहां गई हैं, वो जरा बताएं। नहीं, मीडिया उन चीजों को नहीं उठा रही है। आपने अभी IMF का कर्ज बढ़ रहा है, इस पे मीडिया में कहीं चर्चा है? उस पे ऊपर बात नहीं की कि कर्ज कितना है, हम लोगों ने किया सर, कल भी परसों भी, कल परसों दोनों दिन शो किया हमने। मुझे आपने बिल्कुल किया होगा, मेरे एक पे इशारा नहीं है। मैं तमाम उस स्ट्रीम लाइन में आना चाहता हूं जो उस मुद्दे को बहुत बड़ा बना रही है, जो मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं है। आप वीडियो बनाना ये कोई असंसदीय वर्क है? ये उन्होंने बनाए, उनकी वीडियो उनके मोबाइल में है, उन्होंने जो वीडियो बनाया वो और शेयर नहीं किया। राहुल गांधी ने उसको शेयर नहीं किया किसी के साथ। वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। मैं कह रहा हूं जो मुद्दा बड़ा है उस पर चर्चा करने को ये तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यही सवाल किया, हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं, उस पर बात करो। खाने पीने चीज महंगी हो रही, उस पर बात करो। किसानों की जिंदगी बदले, उस पर चर्चा। आप उस वीडियो बनाने से देश में कौन सा खतरा पैदा हो गया? कौन से जात और मजहब का इंसल्ट हो गया? मैं कहा ना, आप अगर जात और मजहब पे बात करेंगे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। इस देश में कोई बात ही नहीं कर सकता, सब बात वहीं खत्म हो जाती है। जी प्रदीप जी, इस पे मैं क्या नासिर साहब, जो आप महिला की बात की है, महिला सेफ है कि नहीं? एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बीजेपी का कहना 2 दिन में हम लोग किए और 27 साल कांग्रेस को लगे किए ही नहीं है। आज उन्होंने एक पूरे लिस्ट निकाले कि महिला सशक्तिकरण और महिला सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करते हैं। वो 203 करोड़ निर्भया फंड में डाला है। 788 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 13,000 के आसपास हेल्प वुमन हेल्प डेस्क उन्होंने खोला है। 1400 करोड़ के आसपास जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यानी वुमन के सेफ्टी के हिसाब से खर्चा, बजटेड खर्चा और एलोकेट कर दिया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सशक्तिकरण और नारी सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ रहा है, मोदी सरकार, अमित शाह जी कह रहा है कि वी आर डूइंग इट इन अ बिग वे। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नासिर साहब दिया है कि हमने महिला सिक्योरिटी, महिला सशक्तिकरण और वंदन अधिनियम के बारे में 33% रिजर्वेशन की बात। नासिर साहब, इसको क्या डिनाई कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ ना, मैं बताता हूँ। प्रीति सिंह का नाम तो सुना होगा, मुंबई में ही रहते हैं, थाने का नाम सुना होगा। बिल्कुल जी। उस बच्ची को मारने, उसके गाड़ी चढ़ाने वाले कौन थे? यही बीजेपी के नेता, इनके युवा विंग के नेता। वो बच्ची चिल्लाती रही कि मुझे ये कत्ल करना चाह रहा है, गाड़ी से कुचल रहा है। कोई सुनवाई हुई इनकी? आपने जितनी आंकड़े गिनाए उस नंबर पे उसने की, मीडिया में चली, तब भी गिरफ्तारी हुई। तो उन लोगों को इतनी हल्के धारा में सबको बेल भी मिल गई। तो इनकी सब दिखावा है। क्या महिलाओं के सम्मान किधर हो रहा है? आज अब आपने कल महिलाओं की बात करी, उसी ब्रिजभूषण के ऊपर एलिगेशन लग रहा है। क्या महिलाओं को सम्मान दिया उन्होंने? ये सब कहने के लिए है। डेटा अच्छा लगता है किताबों में पढ़ के, आपके आंकड़े गिनाने में, ये पर क्या इंप्लीमेंट हो रहा है वो बहुत मायने। आपने कहा कि मैं महिलाओं को सम्मान दे रहा हूं, महिलाएं तो सड़कों पे बैठी रही, बच्चियां सड़कों पे बैठी रही। प्रीति सिंह थाने में बैठ हॉस्पिटल से ऐलान करते रही ये बंदा मुझे जुल्म कर रहा है, जबकि कानून कहता है अगर कोई महिला आप पे एलिगेशन लगाती है तो उसकी जांच करो, और सबूत है, सीसीटीवी कैमरा है, गाड़ी नंबर है, आप अरेस्ट नहीं कर। तो इन डेटा का क्या करना है प्रदीप भाई, जो डेटा आप मुझे गिना रहे हैं, इससे क्या इंप्लीमेंट हो गया? जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है तो इसकी किताबों में आंकड़ा है, उस किताब को बंद कर दीजिए। जब जमीन पे वो उतर ना सके, जो जमीन पे आ ना सके, ऐसे आंकड़ों को हम खारिज करते हैं, ऐसी चीजों को हम मानते ही नहीं है जो जमीन पे नहीं है। महिलाओं को सम्मान ना मिले, ऐसे आंकड़े झूठे हैं, जो उनके दलील झूठे हैं, उनके हर बात झूठे हैं, हम उन बातों को मानते ही नहीं है सर। जो इंसाफ मनसाफ औरतों को ना मिले, महिलाओं को ना मिले जो सम्मान, तो ऐसे आंकड़ों का क्या वजूद है? प्रदीप भाई आप दिल पे हाथ रख के बैठाइए, कितने महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिया है, कितने महिलाओं को सम्मान दिया है? चंद लोगों को सम्मान देने से ये देश नहीं बदलेगा। देना है इंसाफ तो बराबर दो। आपने प्रीति सिंह का रोते हुआ चेहरा देखा होगा, तो एक बीजेपी एमएलए 25 साल तक
अभी इसको जेल हुआ है उसको विधानसभा तक पहुंचाने का ये बीजेपी काम करती हो, वो रेपिस्ट को इंसाफ पहुंचा, रेपिस्ट के साथ बैठ जो असेंबली में सीट शेयर करती हो, वो ये सब आंकड़े पे बात करी कि महिलाओं को हमने सम्मान दिया है। अरे आपने कुछ महिलाओं के लिए नहीं किया है, आपने महिलाओं के लिए कुछ किया है तो आप उनको सम्मान देने का आंकड़ा दिखाओ। लोगों को सिलेंडर गैस का दाम करो, जो गैस 900-1000 रुपए में बिक रहा है महाराष्ट्र में उसको 450 करो, तब महिलाओं को। आप उन चीजों पे बात नहीं करोगे, आप सिर्फ झूठे झूठे आंकड़ा दिखा के देश को बरगलाने का काम करोगे। इसलिए बोलते हैं कि आंकड़े पे झूठे जितने ये झूठे। Right. Pradeep ji, we really have run out of time. You want to ask a question? Please go ahead. Go ahead. No, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अभी आंकड़े पे आप विश्वास नहीं करो, मगर कह रहे काशी में पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स आ गए और काशी इंफ्रास्ट्रक्चर 41% बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर और 25,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस। तो ये विकसित कश्मीर में आपने 370 की बात की है, 370 में कुछ हुआ नहीं है, बट टूरिस्ट विजिटर्स इतने बढ़ गया है। एक फिगर्स जो काशी के आते हैं, अयोध्या के आ रहे हैं, अभी कश्मीर के जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोले, तो इसको क्या डिनाई कर पाएंगे आप राजीव साहब? नहीं, आप काशी की बात कर रहे हैं या अयोध्या की बात कर रही है, विजिटर आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। ये धार्मिक स्थल ये पहले भी आते थे, या आज नहीं आ रहे हैं कि एक नया आ गए। बनारस में कब कौन नहीं आ रहा था, मैं पूछता हूँ। काशी में कब नहीं आ, 2014 से पहले लोग वहां नहीं आ रहे थे, टूरिज्म वहां नहीं थी। ये सब बोलते 2000 इनके लिए 2014 ये देश ही आजाद 2014 के बाद। तो इसलिए कुछ चीजें मैं बोल डेवलपमेंट रेगुलर काम होने की चीज है, डेवलपमेंट होती ही रहेगी। ये सरकारें बदल जाएगी, डेवलपमेंट होना अच्छी चीज है, पर धार्मिक चीजों से आप हर चीजों को मिला देते हो। आप काशी में क्या पहले हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते थे? क्या विदेशी वहां पे नहीं आते थे गंगा घाट पे? हाँ, कुछ अच्छाई किया है, रोड की सफाई किया है, अच्छी बात है, ये उनका काम भी है। पर क्या काशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहे। वहां पे कौन से कांग्रेस के लोग रहे? वहां कौन से कांग्रेस के एमपी रहे? आप बताइए, वहां कांग्रेस कहां थी यूपी में, जो यूपी से हमें आप मिला रहे हो? हमारी विकास देखना है तो आप दूसरे स्टेटों में भी देखो। क्या हमने अमेठी के अंदर काम नहीं किया? आप अमेठी का पूरा डेटा देखिए, तो जितनी भी चीजों आप पायलट का रनवे देखिए, आप वहां पे IIM देखिए, आप क्या क्या नहीं है वहां पे, IIT देखिए, सब कुछ बनाया हमने। तो ट्रिपल IIT वहां बनाया। तो ऐसा नहीं है कि वहां काम नहीं हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। खुद अमेठी के लोग इस बात की गवाही देंगे। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ नासिर साहब कि राहुल गांधी जी इस बार अमेठी वापस जाएंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं कतरा हूं, तूफानों से जंग लड़ता हूं, मैं कतरा हूं, तूफानों से जंग लड़ता हूं। मेरी हिफाजत करना समुद्र की जिम्मेदारी है। क्या तो समुद्र मेरी, तो ये जो कायनात में जितने इंसान है ना, वो हमारी हिफाजत करेंगे, आवाम हमारी हिफाजत करेगी, क्योंकि हम सच्चाई से लड़ते हैं, हम अपनी बात सच। बार बार ये झूठ को सच दिखाने की जो कोशिश करते हैं, हम उसको बेनकाब करते हैं। ये काशी की जो डेवलपमेंट फेलियर रही, तो इनके मेयर रहे, इनके MP रहे, मुरली मनोहर जोशी जी वहां MP रहे हैं, खुद मोदी जी वहां MP है, इससे पहले मेयर रहा, उनके पूरे MLA रहे। तो वो फेलियर है कि कांग्रेस फेलियर है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार अगर काशी में विकास नहीं हुआ तो। राइट, थैंक यू वेरी मच। अयोध्या विकास हो रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो कोर्ट के फैसले से बोल रहा है, तमाम जाति के लोग, तमाम मजहब के लोग उसका स्वागत करते हैं। वहां विकास होना चाहिए। अगर विकास आवाम को मिलता है, इसके कौन खिलाफ है? I hope Sonia Gandhi ji and Khadge साहब also go to Ayodhya. After all, they've been invited. मैं उम्मीद करता हूं कि वो जाएं। बिल्कुल जाएंगे। किसी की वहां जाने के इनविटेशन का क्यों जरूरत है? बजाज भाई, आप बार बार इनविटेशन पे लेकर, हम इनविटेशन भगवान के पास जाने के लिए किसी जनता का इनविटेशन का क्यों जरूरत है? हम खुद जाएंगे, उनके इनविटेशन का हमें जरूरत ही नहीं है। भगवान के पास जाने के लिए हमें क्यों इनविटेशन चाहिए? वंडरफुल। जब मर्जी होगी, भगवान मुझे बुलाएगा, रामलला के दर्शन हम करके आएंगे। इनके बुलावे पे हम क्यों जाए कि यही हमारे भाग्य में लगता है भगवान को इन्होंने कब्जे में ले लिया है, ये हमें दावत देंगे कि भगवान हमें बुलाएंगे। Absolutely lovely. रामलल्ला हमें बुलाएंगे सर। नासिर साहब, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नागपुर फॉर द 28th। मुझे मालूम है कि बहुत मेहनत हो रही है वहां पे, आप भी वहीं जा रहे हैं और मुझे लग रहा है आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। और बाय द वे, मेरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। राइट।
So Pradeep ji, the Nasir Saab as usual, very straight up front and ready to take on anything and everything. And as far as the BJP is concerned, let's be very clear, the BJP really doesn't have any answers, especially on a couple of questions, especially with regard to the women wrestlers. Women wrestlers को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है. आप जो मर्जी बोलते रहिए. The fact remains that is a black mark on the BJP. On the rest, as far as Ayodhya is concerned, या Kashi is concerned, Ujjain Mahakaleshwar corridor is concerned, on that the BJP has done a wonderful job and we salute them for all of that. Number 2, आपने देखा होगा नासिर साहब से हमने पूछा, आपने क्या सवाल पूछा? आपने कश्मीर की भी बात करी थी. कश्मीर की बात वो गोल कर गए, कश्मीर के बारे में उन्होंने बोला नहीं. 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं सर कश्मीर में अभी तक. And there are about I've been told about 10 or 15 lakh more will at least come before 31st of December. They want to spend a white Christmas in Gulmarg and Pahalgam and elsewhere. बड़ी ज़बरदस्त बर्फ पड़ी है वहाँ पे, and all arrangements have been made for a beautiful Christmas party and a lovely New Year. I hope it happens. सर फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, फिल्म इंडस्ट्री